Hello everyone, welcome back to our channel Success EduTech. Thank you for watching my previous video and a good response on that videos. Now today we are starting algebra. In algebra we have already started a chapter number 3, that is arithmetic progression. In arithmetic progression we have covered this topic in previous lecture. Now let's see, today's topic is how to find a n term of an AP. Now, then onwards we are seeing these remaining topics one by one. Now, today's topic is arithmetic progression. First of all, what is meant by arithmetic progression? Arithmetic progression is nothing but the common difference between the two successive terms is a constant. This is a one graph, that is ages versus number of person. Age वर्सेस नंबर ऑफ पर्सनस. इसमें क्या दिख रहा है आपको? एक ग्राफ है जो कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है विद अ कांस्टेंट डिफरेंस. जैसे ए और बी का अगर डिफरेंस देखा जाए 10 है, बी और सी का देखा जाए तो फिर से 10 है, सी और डी का देखा जाए एज डिफरेंस तो 10 है, डी और ई का अगेन 10, ई और जी का 10, जी और एच का 10, अगेन एच और आई का 10, आई और जे का 10. सो थ्रू आउट द सीरीज क्या हो रहा है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 10 है. दैट मीन्स दिस सीक्वेंस इज इन AP. सो वी कैन सी दैट और से दैट all the ages of these 9 members are in a sequence with a common difference or a constant difference is 10. So I hope you are clear what is meant by arithmetic progression. Simply, the common difference between two successive elements or a terms is a constant throughout the series. This is nothing but a arithmetic progression. Now let's see which topic we have covered in previous lecture. So in previous lecture we have solved the problems on finding a sequence is in AP or not. In practice set, or what is meant by sequence. In practice set we have solved the question on a sequences or check a sequence in AP or not. So these two topics we have covered in previous lecture. Now today's lecture is on how to find n term of an AP. Today's topic is based on mainly focus on this topic, these terms, or calculating on a n terms. So for calculating a n terms of an AP, we must require one particular formula, that is an equal to a1 plus n minus 1 into d, where an is nothing but an n term of a sequence, means last term. We can say that is the last term of a sequence. A1 is nothing but a first term of a sequence. n is nothing but a number of terms. उस sequence में कितने terms दिए हुए, that is nothing but your n value. And d is nothing but a common difference between these two terms or a successive terms. I hope you have cleared this formula. What is this formula? Says that now by using this formula we are solving some problems on arithmetic progression. Now start with first problem. Now let's check. Find the 100 terms of an AP. आपको क्या दिया गया है? कितनी टर्म निकालनी है? 100वीं टर्म निकालनी है. कुछ सीक्वेंस AP में दिया हुआ है. इसके बेस से आपको A का वैल्यू मिल जाए, कितना है? A का वैल्यू मिलता है 5 और D का वैल्यू कितना मिलता है? 3. सो अप्लाई Tn इक्वल टू A प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी. सो मुझे A का वैल्यू पता है. A का वैल्यू कितना है मेरा? 5 प्लस 5n n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है? 3. सो इसे और सॉल्व करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा? सो मुझे 100वीं टर्म निकालनी है, T100. तो मेरे पास n का वैल्यू कितना है? 100. तो मैं डाल दूंगा. सो 5 प्लस 99, 100 में से 1 गया 99, 99 मल्टीप्लाइड बाय 3. सो इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 302. 9 7 5 2 या 302. सो देखिए A मिल चुका है, D मिल चुका है. सो A और D का वैल्यूज डाला है और n का वैल्यू डाल दिया. तो मुझे कितना मिला है? T100 इक्वल टू 302.
सो मेरी 100वीं मीन्स 100वीं टर्म क्या रहेगी, 302 रहेगी। आई होप यू आर क्लियर दिस डाउट। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द Tnth ऑफ एन AP, फाइंड द T30। सो कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है। सो इसे सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ए तो मिल चुका है मुझे, ए पता है कितना है, ए का वैल्यू कितना है पता है 3, डी का वैल्यू पता है 5 रहेगा। सो Tn का फॉर्मूला लगाऊंगा, Tn इक्वल टू वी गेट 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो डी कितना है मेरा 5 है। सो इसे और सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 5n माइनस 2। सो मुझे कितना चाहिए अभी, T30 चाहिए। तो n का वैल्यू कितना है मेरे पास 30, सिंपली पुट कर दूंगा ना, 5 3 जार 150, 150 माइनस 2 वी गेट 148। सो मुझे T30 कितना मिला 148। नाउ लेट्स सी वन बाय वन। दिस इज द टर्म्स आर इन AP given. Now T2 minus T1, T3, T4 I have mentioned in a standard format. So D मुझे कितना मिलेगा, T2 minus T1 we get a D. So we know that the formula Tn equal to A in bracket n minus 1 into D. So A और B की A और D की वैल्यूज डाल दिए। सो मुझे Tn पहले मिल चुका है, कितना मिला Tn इक्वल टू 5n माइनस 2। सो मुझे अभी T30 चाहिए, तो T30 का वैल्यू n की जगह डाल दूंगा, n की जगह 30 डाल दूंगा, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा T30 का। तो T30 का वैल्यू कितना है मेरा 148। तो T30 नंबर की टर्म क्या रहेगी मेरी 148। आई होप यू आर क्लियर दिस डाउट और अ प्रॉब्लम। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम्स, एनी डाउट और प्रॉब्लम्स, एनी डिफिकल्टी फेसिंग, then please mention in a comment section. I will clear that. I will clear your doubts in that section or a comment section. Now let's see the next problem. Which terms of an AP is 560? Means 560 एक कितने नंबर की टर्म्स है ये निकालना है, आपको सीक्वेंस दिए हुआ है। Now let's see how to solve. So A का वैल्यू कितना मिलेगा मुझे 2, D का वैल्यू कितना मिलेगा 9। सो Tn इज़ माई 560 मीन्स मेरी Tn की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे 560 दिए हुआ है। तो मुझे वैल्यू किसका निकालना है n का, तो कितने नंबर पे रहेगा। तो मैं अप्लाई करूँगा Tn का फॉर्मूला, सेम अगेन अप्लाई किया, उसके बाद मेरा Tn का वैल्यू 560, A और D का वैल्यूज डालने के बाद मुझे ये इक्वेशन मिलेगा। सो पुट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, दिस 9n इक्वल टू 567। सो n इक्वल टू वी गेट 567 डिवाइडेड बाय 9। इसे और आगे सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा n इक्वल टू 63। सो कितने पोजीशन पे रहेगा, 63वें पोजीशन पे क्या रहेगा मेरा 560 रहेगा इन दिस सीक्वेंस। और इसे और आगे लिखते जाऊँगा तो मुझे 63 पोजीशन जब आएंगे तब मुझे क्या मिलेगा 560। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4? फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस बनाना है, पता नहीं है, सिर्फ कहा है डिविजिबल बाय 4 चाहिए। सो मेरा पहला नंबर 2 डिजिट नंबर कहाँ स्टार्ट हो रहा है 10 से और ख़त्म कहाँ पे हो 99 पे। सो इसके बीच के 4 से डिविजिबल मीन्स 4 से भाग जाने वाले नंबर चाहिए, 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल यानी रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ऐसे नंबर्स चाहिए। सो 10 को तो जाता नहीं भाई। सो पहला नंबर क्या होगा मेरा 12, 12 के बाद क्या होगा 16, बाद 20, बाद में 24 अप टू डैश 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 96। सो मेरा लास्ट नंबर क्या रहेगा 96। सो मेरी Tn की वैल्यू क्या रहेगी 96, A की वैल्यू क्या रहेगी 12 और D की वैल्यू क्या रहेगी 4। So now simply applying the formula of a Tn, we get a value of a n. So now these are the series in a sequence. Now Tn A, I have already told you how to write it. So now Tn equal to 96 by formula. So we get 4n. After putting all the values, we get 4n equal to 88. So we get n equal to 22.
सो कितने नंबर्स रहेंगे इनके बीच में? 22 नंबर्स रहेंगे। के 22 नंबर्स रहेंगे जो किससे डिविजिबल है? 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ दिस इज अ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपको दिए हुआ है फाइंड द 24 टर्म्स। सो इस पर से सबसे पहले तो a का वैल्यू मिल जाएगा 12, d का वैल्यू है 4। सो मुझे कितना निकालना है? t24। सो n का वैल्यू पता है 24। सो a इक्वल टू 12, t24 इक्वल टू 12 प्लस 24 माइनस 1 इंटू 4। सो इसे और सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या निकलेगा? 12 प्लस 23 मल्टीप्लाइड बाय 4। सो इसे सॉल्व करूँगा तो 4 3 जा 12, 12 का 2 1 कैरी, 4 8 जा 2 92 प्लस 12। सो इसे और आगे सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा 104 114 sorry 104 right 104. This will be my 24 term. So t24 equal to कितना मिलेगा? 104. So this is my t24 terms in an AP. I hope you have cleared the doubts. Now let's see the next problem. This problem I have already explained you, but there is a large number of sets. आपको रेंज दिया हुआ है अभी, इसके पहले आपको दिया था 2 डिजिट ही चाहिए, तो अभी इसके बीच में ढूंढना है। सिमिलरली सो मेरा 12 जाएगा, 10 को जाता नहीं है, बाद में 16। सो वी नो माई ए इज, सो 250 के पहले मेरा एक नंबर चाहिए जो 4 से डिविजिबल है, दैट इज 248। सो लास्ट नंबर क्या रहेगा मेरा? 248। सो 248 इक्वल टू ए मेरा 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 4। इसे और सॉल्व करूँगा तो 248 माइनस 8 इक्वल टू 4n n इक्वल टू वी गेट 60 सिंपली। सो कितने नंबर्स रहेंगे इन दोनों के बीच में? 60 ऐसे नंबर रहेंगे जो डिविजिबल बाय 4 रहेंगे, जो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 रहेंगे। I hope you have cleared this doubt or how to solve these problems. In next portion, we are learning what is meant by arithmetic progression and a summation problem based on the summation. That is the SN, how to calculate SN, or what is the formula for calculating sum of a n number of terms. We are seeing in the next lecture. Please stay connected here for next videos. Now, thank you for watching Success EduTech. Don't forget like, share and subscribe to our channel. Kindly subscribe to our channel and share these videos for a needy person. Your one sharing or one like are improving and motivating to us for making us such videos. Thank you for watching Success EduTech.